This is massive breaking news coming in at 10:06 and Amit Chaudhary is breaking down the details. Significant development in the investigation, phones being seized. That means the NCB has found evidence. That means the NCB is going to look deeper, especially when it comes to digital evidence. Because of this digital evidence, they came across those chats in the year 2017 where Deepika Padukone is heard asking her Quant talent manager if she has mal. Now, what does this mean, Amit? You've been tracking this investigation very, very closely, and as an investigative journalist who's been tracking investigations by central agencies, what does it mean when a central agency goes ahead and seizes phones of people? Here we are talking about actors like Deepika Padukone, Karishma Prakash and Rakul Preet and Simon Khambata. Very, very interesting lead here. देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा इन सब पे शक है, क्योंकि देखिए हम लगातार जब से इंट्रोगेशन हो रहा था, इंट्रोगेशन के बाद जब दीपिका वहां से निकली एनसीबी ऑफिस से, तब हमने कहा कि कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब दीपिका ने नहीं दिया। कई जगह दीपिका ने जिस तरीके से जवाब दिया तो एनसीबी को लगा कि ये पहले से प्लान्ड होकर आई है, पहले से स्क्रिप्टेड है और उसको दोबारा भी सम्मन किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय किसी को सम्मन नहीं किया गया। फोरेंसिक जांच के लिए दीपिका पादुकोण, सिमोन खंबाटा, रकुल और करिश्मा का जो मोबाइल है वो भेज दिया गया है। साथ ही में करीब 30 ऐसे लोग हैं जो रडार पर हैं, जिनको लेकर के जो है पूरा का पूरा जो एनसीबी है वो सोच रही है कि इनमें कई हाई प्रोफाइल भी है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, इन तक कैसे पहुंचे। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि दीपिका पादुकोण ने जो जवाब दिए हैं। Alright, Amit, there's more breaking news coming in. More breaking news coming in. There's also the phone of Jaya Saha, Quant talent manager Jaya Saha, who is suspected to be the kingpin of the Bollywood drug racket. Even her phone has been seized. Massive new development coming in on this day when actors have faced grilling anywhere between 4 hours to 6 hours. It's 10:08. Amit is breaking down these details. What can we tell you? One, Deepika Padukone's phone has been seized. Rakul Preet Singh's phone has been seized. Karishma Prakash's phone has been seized. Simon Khambata's phone has been seized. And right now, Quant talent manager, with whom the chats have come out, the chats that we've showed you, where she in fact went ahead and told Shraddha Kapoor that she's arranged for CBD oil. Her phone has been seized as well. Amit, what do you make out of this? These are fast-paced developments coming in at this point of time. देखिए, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रद्धा कपूर ने बोला कि सीबीडी ऑयल जो उन्होंने मंगवाया था वो एक्सटर्नल यूज के लिए मंगवाया था, उनका फोन नहीं सीज किया गया। लेकिन हाँ, सारा अली खान का जो फोन है वो जरूर सीज कर लिया गया है। उसके अलावा दीपिका को बोला गया कि उसका पुराना फोन कहाँ है, उसका वो जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। Amit, this is also another breaking news input. Are you confirming that Sara Ali Khan's phone has also been seized? बिल्कुल बिल्कुल Massive. This is massive. So there is बिल्कुल। Deepika देखिए, यानी कि 5 लोग हैं जिनके फोन जो है 6 लोग हैं, क्योंकि देखिए। Go ahead, Amit. Go ahead. बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा 6 टोटल ऐसे लोग हैं जिनके फोन को सीज किया गया है। इसमें करिश्मा है, जया शाह है, दीपिका पादुकोण है, सारा अली खान है, सिमोन खंबाटा है, रकुल प्रीत है। यानी कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि देखिए एनसीबी को शक है कि जो जवाब वो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं पहले से वो प्रिपेयर होके आए हैं। कई सवालों के जवाब इनके पास नहीं थे। फिलहाल किसी को समन नहीं भेजा गया, क्योंकि देखिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। मंडे को जो एनसीबी टीम है वो यहाँ से दिल्ली जाएगी, डीजी से मिलेगी, उनको अपनी जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है उसकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेंगे। इसके अलावा कई फैक्ट्स जो दीपिका ने बताए, सारा अली खान और श्रद्धा ने बताए, उनको क्रॉस चेक करेगी और क्रॉस चेक में पाया जाता कि ये झूठ बोल रहे थे तो इनको फिर से बुलाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है कि जो फैक्ट्स उन्होंने बताए, जो उन्होंने चीजें बोली कि जो उन्होंने अपने बचाव में जो चीजें बोली हैं, जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, अगर वो झूठे पाए जाते हैं या आगे इन्वेस्टिगेशन में इनको लगता है कि झूठ बोल रहे थे, उसको क्रॉस चेक करने के लिए एनसीबी ने टाइम लिया है। लेकिन अगर वो क्रॉस चेक में फेक पाए जाते हैं, झूठ पाए जाते हैं, उनकी जो दलीलें हैं वो झूठी पाई जाती है, तो इनको फिर से बुलाया जा सकता है। जी।